So recording has already started. So we will, अभी starting के 15 minutes में अपने आप को unmute रखिएगा. I mean mute रखिएगा. फिर I will take up the doubts at the end of the session. So let's start the market. So we were discussing the market, right? And this topic is very busy, very easy. So for all the participants who are there in the class, you all are requested before coming to this lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इससे पहले लेक्चर नंबर 1 डाला है आपको मार्केट के लिए. उसमें मैंने आपको एक स्टोरी के थ्रू विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी और वी कैन से केस स्टडी आई हैव डिस्कस्ड विद इन 15 मिनट्स. सो सिर्फ 15 मिनट्स की क्लास में यू कैन कवर द बेसिक्स ऑफ मार्केट एंड इन दैट पर्टिकुलर आई हैव टेकन द केस स्टडी ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री. चलिए लेट्स स्टार्ट द थियोरेटिकल पोर्शन टुडे. So market can be categorized into two parts. We all know first one is perfect competition and second one is imperfect competition, right? So this imperfect competition can be further categorized into three parts. Yes, so three parts, that is, you can see over here. The first one is monopoly. The second part is monopolistic competition. Monopolistic competition. And third part is obviously, the third part is going to be your oligopoly market. So first of all, in this discussion, first of all, we will cover the imperfect competition and then we will come to the perfect competition, because perfect competition में कोई bifurcation नहीं है, कोई इसके different parts नहीं है. So first of all, we will cover the monopolistic competition, and after covering these two topics, we will cover to the perfect competition and we will discuss the oligopoly competition at last, right? So this will be the sequence of the class. So first of all, today we will discuss imperfect competition, and in imperfect competition we have to discuss the monopoly, right? So let's start with the monopoly topic. Yeah, so we have to cover monopoly market, and as we have already discussed in the last class with the help of telecom industry. So इसमें आपने देखा था इस केस स्टडी में जो हमने कल डिस्कस किया था, yesterday evening. So in that case study you can see कि the telecom industry of India was monopoly before 1991. We all know. So in monopoly, let's discuss first of all some features. So features discuss करते हैं एक बार जल्दी से हम लोग, and then we will cover to the other portion. So one by one we will discuss the features. So let's discuss the features. I am finding it difficult to manage this particular application. I don't know क्या हो रहा है. Just a second, beta.
So we were discussing some topics, and obviously we are discussing the monopoly market, right? So in monopoly we have to discuss first of all features. So we all know the very basic features of monopoly, that is single seller. The first feature is single seller. The meaning of monopoly in Hindi is ekadhikar, means this is the market where only one person is dominating the whole industry. Only one entity or only one company is dominating the whole industry, right? That's why we are calling it as single seller, right? And obviously large number of buyers. Large number of buyers is the second point. Third point is no close substitutes. No close substitutes is the third point, right? And fourth point we can take, the fourth point is no close substitute is the third point, right? What else? What is the fourth point over here? Anyone in the class? आप देखना बस बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा ना है, मेक श्योर कि बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा नहीं है. Single sellers and no close substitutes. Let's take one more example, like barriers to entry in the market. Barriers to entry, right? In the coming sections we will discuss the perfect competition and monopoly. In that, in those market, you know, there is free entry and exit in the market, but here, you know, there is a barriers to entry, free entry and exit in the market when we talk about the perfect competition and monopoly. But in this particular market there is barriers to entry, because if there is free entry and exit, then you know the monopoly position will all will be vanish, will be finished. That's why there is a strict restriction by in the terms of licensing, in the terms of some other, you know, like some other government rules and regulations, high cost structures, price discrimination. So these are some of the ways of barriers to entry. So this is the fourth feature. The fifth feature is going to be, you know, this is going to be very, very important, the price discrimination point. So in this particular market, a seller can sold their product to different customer at different prices, है ना? इसमें क्या होगा कि जो seller होगा, because there is only single seller. The example is Indian Railway. As of now, the Indian Railway is privatizing slowly and gradually, and some of the railway portion is sold to some Adani and some other groups. So slowly and gradually Indian Railway is also getting privatized. But we can take up the example as Indian Railway. लेकिन धीरे धीरे रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और धीरे धीरे अब ये मोनोपोली नहीं रहेगा in the coming years, right? So these are some of the features we all know. ये 5 basic features है, we are already aware of these things. Now let's try to discuss the equilibrium. वहां आप लोगों को ज्यादा doubts मैंने देखा, you people are asking your doubts when I talk about the equilibrium, because you know features are very, very simple. When we discuss the features, so you can tell if you find any kind of difficulty. Features में बेटा कोई doubt है? You know the single seller, we all know the meaning of single seller. Single seller means there is only one seller or one company who is dominating the whole industry. जैसा हमने किसी स्टडी में भी देखा था, in that case study, telecom industry, before 1991, the Indian telecom sector was also monopoly, because only MTNL and BSNL company was there. So सिर्फ गवर्नमेंट का वहां पे मोनोपोली था, and no private player is allowed to participate in the market. हम सभी जानते हैं, ठीक है? अगला पॉइंट है large number of buyers and large number of buyers. So we all know कि भाई किसी मार्केट में large number of buyer होगा तभी वो मार्केट एग्जिस्ट कर सकता है. सिर्फ अगर सिंगल बायर होगा या सिंगल सेलर हो, सिंगल सेलर तो हमने देख लिया, बट बायर्स, ये इट इज वेरी ऑटोमेटिक दैट बायर शुड बी इन द large size, because if buyer is not sufficient enough in a particular market, then that market will not survive. The third point is no close substitute, means there is no any competition. क्योंकि बेटा अगर कंपटीशन होगा तो फिर मोनोपोली किस बात का, राइट?
एंड फोर्थ पॉइंट है आपका बैरियर्स टू एंट्री. सो it is very difficult to enter in this particular market because in the form of licensing, in the form of government rules, in the form of high cost structure. So इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं जो कि एक तरीके से बैरियर का काम करते हैं. एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल यहाँ पे. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फिस्क ड्रिंक इंडस्ट्री. फिस्क ड्रिंक इंडस्ट्री. So we all know the two giant companies in this particular industry, that is Coca-Cola and some other, the other one is Pepsi. And there are some portion of a company called, I think, Parle Agro. So Parle, the product of Parle Agro is like Fruity, Happy Fizz, and some other. But these are the main players. The major players is Coke and Pepsi. So now the question arises, can other company enter in this particular market of fisk industry? Suppose in the case of India, the answer is yes. Yes, sir. Any company can enter in this particular market. But we can see for the last couple of years, like 5, 10, 20 years, only two companies dominating the whole market. Because these companies are giant companies. They have huge capital base. And if any company, like I have to give some examples like Limca and Thumbs Up, these are the two prime example. You all know, मुझे पता है आप बोलोगे सर ये तो कोक के ब्रांड है. बेटा सही बोल रहे हो आप. This is the brand of Coca-Cola. But earlier it was not the brand of Coca-Cola. Limca was a separate company and Thumbs Up was also a separate brand. But they are not able to survive in the market. They are not able to compete with the companies like Coke and Pepsi. So इसको क्या किया है, Coke ने इन दोनों ही brands को acquire कर लिया, acquisition कर लिया इनका. So इस तरीके से the big companies create the barriers in the industry. इस तरीके से आप देख सकते हो कि मार्केट में barriers create कर देती हैं ये कंपनियां. चलो, तो ये बेसिक चीजें. और फिफ्थ पॉइंट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इसके ऊपर हम काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज देयर आर 3 काइंड ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. फर्स्ट डिग्री price discrimination, second degree price discrimination, and third degree. So we will discuss on this particular topic in detail. इसके लिए मैं एक particular class रख लूंगा. 15-20 minutes मुझे चाहिए इस topic के लिए. So as of now we have covered the features, right? Features हमने discuss कर लिया है. Now let's discuss the equilibrium, जो कि आपका main concern होता है आप सभी का. और आप सभी के बार बार ये क्वेरीज आती हैं. मेरे पास कुछ बच्चों के पर्सनल मैसेज भी आए थे कि सर एक बार ना वो इक्विलिब्रियम समझा देना, उसमें अलग अलग डायग्राम्स थे एंड दैट डायग्राम क्रिएट्स द प्रॉब्लम. तो ठीक है जी. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम वी कैन से द प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन. प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली, राइट? ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, राइट? प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली. ठीक है बेटा, इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम. हाउ अ मोनोपोलिस्ट फाइंड देयर इक्विलिब्रियम, राइट? सो when we talk about the equilibrium or price output determination, we can categorize the whole scenario into 2 parts, and we know the 2 parts or 2 time period will be short run analysis and long run analysis. So short run and long run में हम इसको categorize कर सकते हैं बेटा. ठीक है, long run and short run. So in short run, when we talk about the monopoly, because we are discussing as of now monopoly. So in monopoly, when we talk about the short run, there are some possibilities. Like a firm can get abnormal profit or supernormal profit. Supernormal profit. Supernormal profit. Or we can say abnormal profit. The second point is normal profit. The second point is normal profit. And the third point is, minimum loss. Minimum loss is the third point, right? Or third possibility we can say. There are 3 possibilities we can say कि short run में एक
मोनोपोलिस्ट के पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इधर इन शॉर्ट रन उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, या उसको नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, या मिनिमम लॉस हो सकता है। एंड इन लॉन्ग रन हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? अगर आपको ध्यान हो तो परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट इज द ओनली सिचुएशन, बिकॉज लॉन्ग रन में एक फर्म लॉसेस के साथ तो सरवाइव कर ही नहीं सकती है, तो लॉसेस तो होगा ही नहीं। एंड जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है ये एक मार्केट में अराइज ही नहीं हो सकता, ये एक मार्केट में अराइज ही नहीं हो सकता, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, so the first possibility is super normal profit, right? so super normal profit अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक, जहां भी कंपटीशन वर्ड आ जाएगा ना बेटा, चाहे वो आपका परफेक्ट कंपटीशन हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, तो जब भी हम कंपटीशन की बात करेंगे तो वहां पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपटीशन में तो बहुत सारी फर्म्स होती है ना, वहां पे आपके कॉम्पिटिटर्स या सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, और जब सब्स्टिट्यूट होंगे और आपके पास बहुत सारा प्रॉफिट आएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो फिर न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर कर जाएंगे, क्योंकि वहां पे जब कंपटीशन होगा तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? फ्री एंट्री एंड एग्जिट हो जाएगा, आंसर इज यस। तो जब फ्री एंट्री एंड एग्जिट होगा तो जो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, इसको आप ऐसे समझो कि आपके पास एक केक का पीस है और उसमें आप मोनोपोली मींस यू आर द मोनोपोलिस्ट, मींस आप पूरे केक के अकेले मालिक हो। बट अगर आपके पास कंपटीशन होगा तो मार्केट में और भी फर्म्स एंटर करेंगी और आपका जो केक का टुकड़ा है वो कई सारे फर्म्स में बट जाएगा, और आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपको सिर्फ एक उसका एक हिस्सा मिलेगा, बिकॉज अदर फर्म्स आर ऑल्सो ऑपरेटिंग इन द मार्केट। सो आपको एक कोई एक पर्टिकुलर स्लाइस मिलेगा, आपको पूरा केक नहीं मिलने वाला है, बिकॉज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय सम अदर कंपनीज, सम अदर फर्म्स। आप सबको पता ही है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज गोइंग टू बी मिनिमम लॉस। तो मिनिमम लॉस भी आपका अदर मार्केट्स में नहीं होता। किन मार्केट में? जब हम बात करते हैं कंपटीशन की, वहां पे आप मिनिमम लॉस के साथ भी सरवाइव नहीं कर सकते लॉन्ग रन में। लेकिन जब हम बात करते हैं मोनोपोली की, तो मोनोपोली में चाहे लॉन्ग रन हो चाहे शॉर्ट रन, ये दो तीनों ही पॉसिबिलिटी लॉन्ग रन में भी हो सकता है और शॉर्ट रन में भी। मुझे पता है आप लोग इस पॉइंट में कंफ्यूज हो सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इधर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, you know all the 3 possibilities are there in the monopoly। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, मिनिमम लॉस भी शॉर्ट रन में। तो ये शॉर्ट रन में तो चाहे कोई भी मार्केट हो, चाहे मोनोपोली हो, चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे मोनोपोलिस्टिक हो, ये 3 सिचुएशन तो हर एक मार्केट में शॉर्ट रन में होंगे ही होंगे। लेकिन जहां कंपटीशन वर्ड आ जाएगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस नहीं होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं मोनोपोली की, तो मोनोपोली एक मोनोपोली मार्केट में, मोनोपोली मार्केट ही ऐसा मार्केट है जहां पे आपको लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और मिनिमम लॉस भी हो सकता है। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसका आंसर सुन लीजिए बेटा जी। इसका आंसर यह है कि क्योंकि आप मार्केट में अकेले हो ना बेटा। मोनोपोली का मतलब क्या है? यू आर द किंग ऑफ द मार्केट, देयर इज नो एनी कॉम्पिटिटर। तो आप ऑब्वियस सी बात है, आपके पास ये जो पूरा केक का टुकड़ा है आप अकेले ही इसको खाने वाले हो। यू आर गोइंग टू हैव दिस पर्टिकुलर स्लाइस ऑफ केक, यू नो, ऑल अलोन। तो जब अकेले आप इस केक का टुकड़ा शेयर कर, आई मीन देयर इज नो वन टू शेयर, तो आप इजीली आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर सकते हो, चाहे लॉन्ग रन हो चाहे शॉर्ट रन हो। ठीक है बेटा जी, तो ये तो हमने समझ लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि चलो नॉर्मल प्रॉफिट तो होगा ही होगा, वो हमने समझ लिया। अब आप लोगों के माइंड में एक डाउट आ सकता है कि सर ठीक है, ये दोनों कहानी समझ में आ गई हमें, अब हमें ये समझा दो कि सर मिनिमम लॉस कैसे हो सकता है, एक मोनोपोलिस्ट लॉन्ग रन तक लॉस को कैसे बियर कर सकती है। आपने तो पढ़ा रखा है हमें कि सर मिनिमम लॉस शॉर्ट रन में तो एक फर्म बियर कर सकती है, उसको यू नो दे कैन सर्वाइव, बट लॉन्ग रन में सर एक फर्म लॉसेस के साथ कैसे सर्वाइव कर सकती है। तो बेटा इसका आंसर ये है कि जब भी एक इंडस्ट्री में मोनोपोली होती है ना, तो वहां कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट बैक कर रही होती है, गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को सब्सिडाइज कर रही होती है। और इसका बेटा प्राइम एग्जांपल मैं आपको दूं, इसका प्राइम एग्जांपल है यू नो इंडियन एयरलाइंस में एक एयरलाइन है जिसको हम बोलते हैं, आई थिंक जिसको अभी टाटा ने खरीदा, क्या नाम है उस एयरवेज का? जेट एयरवेज नाम था, क्या नाम था बेटा? किसी को नाम ध्यान आ रहा है? आई विस्तारा है थिंक सर शायद। नो 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 नो, इंडियन बेटा, जो इंडियन गवर्नमेंट का था वो, आई थिंक इट वाज एयर इंडिया।
एयर इंडिया। एग्जैक्टली, इट वाज एयर इंडिया, राइट राइट राइट। सो एयर इंडिया जो कि अभी टाटा कंपनी ने अक्वायर, आई मीन 20,000 करोड़ में ऑन एन एवरेज, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट मेरे ख्याल में 20,000 करोड़ में टाटा कंपनी ने एयर इंडिया से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परचेज कर लिया, एक्वायर कर लिया है। अब आपके मन में, आपको पता है ये बात अच्छे तरीके से, यू ऑल नो दैट एयर इंडिया इज फेसिंग लॉसेस फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, फॉर मोर देन 10 ईयर्स मैं सुनते आ रहा हूं, फॉर मोर देन 10 ईयर्स एयर इंडिया इज फेसिंग लॉसेस, ह्यूज लॉसेस, लाइक इन करोड़, इन 1,000 करोड़। सो एयर इंडिया कंपनी पिछले 10, 15, 20 सालों से लॉसेज में चल रही है, बट फिर भी ये कंपनी सरवाइव कैसे कर गई इतने लॉन्ग रन तक? तो उसका आंसर क्या है बेटा? क्योंकि खैर एयरलाइंस में तो मोनोपोली नहीं है, और भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, बट मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि किस तरीके से जब मोनोपोली होती है तो वहां पे गवर्नमेंट बैक कर रही होती है, गवर्नमेंट वहां पे कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री को बचाने के लिए सब्सिडीज के थ्रू या फिर किसी न किसी थ्रू उसको एक तरीके से बैक कर रही होती है। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से मोनोपोली जब होता है, जहां पे गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन होता है उस इंडस्ट्री को, बेसिकली देखो मोनोपोली क्यों क्रिएट किया जाता है, ताकि उस इंडस्ट्री को प्राइवेट प्लेयर से बचाया जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए हम किसी किसी सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट करके रखते हैं। जैसे इंडियन रेलवे इज द बेस्ट एग्जांपल। अब तक इंडियन रेलवे जो थी उसको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट कर रखा था, बट इट इज क्वाइट ऑफन हर्ड दैट इंडियन रेलवे इज ऑल्सो हैविंग लॉसेज। हम लोग क्वाइट ऑफन सुनते रहते हैं ना कि इंडियन लॉसेज भी, आई मीन इंडियन रेलवे भी लॉसेज में जा रही है। इसीलिए धीरे धीरे उसको प्राइवेटाइज करने की प्रोसेस चल रहा है, और इन द कमिंग डेज वी कैन सी कि क्या पता अब ये सेक्टर भी प्राइवेटाइज हो जाए, बट गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि मासेज का वेलफेयर हो सके। क्योंकि जब गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे जब गवर्नमेंट जब ऑपरेट कर रही थी इंडियन रेलवे को, तो देखो फेयर कितना सस्ता था, फेयर वाज वेरी वेरी चीप। कहते हैं इंडियन रेलवे इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मोर देन करोड़ पीपल आर देयर इन इंडिया हु इज ट्रेवलिंग विद द हेल्प ऑफ रेलवेज। लेकिन जब प्राइवेट हो जाएगा तो आपको पता ही है कि फिर मनमाना पैसा लिया जाएगा, और उसमें फिर जो बेसिक लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, और हम सभी जानते हैं, हम सभी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं कि यहाँ पे करोड़ ऑफ पीपल आर देयर, मोर देन 30-40 करोड़ आर पीपल जो कि बीपीएल में आते हैं, वो बहुत गरीब लोग हैं। तो ऐसी कंट्रीज में, ऐसी सोशलिस्ट इकोनॉमी में, हमारा कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी है, और यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर भी है, जहां गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है कुछ इंडस्ट्रीज को। चलो, तो आज का सेशन हम इतना ही रखेंगे। अब मैं आपका डाउट लूंगा, मैं अब फिलहाल वाइंड अप करने जा रहा हूँ, और 2 मिनट बाद आपके डाउट लेता हूँ बस।